Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 6 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज स्पोर्ट्स, यानी कि खेल। आप सब जानते हैं कि खेल हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। A healthy body keeps a healthy mind. अगर हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखेंगे, अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे, आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहेगी। बॉडी फिट एंड हेल्दी रहेगी तो इट्स मीन ऑटोमेटिकली हम भी एक हेल्दी माइंड को कीप करेंगे। सो अ हेल्दी बॉडी ऑलवेज कीप अ हेल्दी माइंड। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम रीडिंग जी। तो अब सबसे पहले विच स्पोर्ट्स डू यू लाइक, तो आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है? भाई मुझे तो बैडमिंटन बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद है? क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, आप हॉकी, आप क्या खेलते हैं जरूर बताइएगा। सो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर आपको क्या लगता है कि कौन सी गेम है? भाई मुझे तो लगता है कि क्रिकेट पॉपुलर है। और आपको पता है पाकिस्तान का नेशनल गेम कौन सा है? यस, पाकिस्तान का नेशनल गेम है हॉकी। Now, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। Sport is an important element of schooling and life in general. It develops various important qualities such as leadership, patience, teamwork, etc. Sports and physical activities improve fitness and immunity against common illness. Moreover, sports are great for character development and morals through fair play. Sports offer the participants the opportunity to interact with others and thus create a learning environment, as they learn to respect rules, teammates, and opponents. Life is full of failure and success, but it is up to us to decide how we perceive the outcomes. When we play a game, say football or cricket, we may lose or win. Sportsman's spirit is the act of accepting one's success with humility. This type of policy helps us to cope with failures and disappointments that come our way. In case of failure, positive attitude motivates us to make renowned efforts to achieve success next time. From such situations, we learn to accept defeat gracefully. In Pakistan, there is a wide range of sports activities, local as well as international. In rural areas, traditional sports such as wrestling, horse racing, kabaddi are popular. Feats of champions are recorded by village bards and become part of local legend. In the urban areas, sports such as cricket, hockey, squash, polo, tennis, and football are popular. Tournaments are organized in schools, colleges, universities at provincial and national level. Sports play a key role in shaping nation identity and pride. In spite of the scarcity of the funds and lack of adequate facility, Pakistani sportsmen have achieved remarkable victories even at the international level through sheer talent and determination. In the early 19s, Pakistan won world championship in sports as diverse as cricket, hockey, squash, and snooker. Pakistan's remarkable success in squash had the most unlikely of the beginnings. Equally astonishing is the success of Pakistani competitors in snookers and yachting. The game became popular when Mohammad Yusuf achieved unexpected victory in the World Championship in 1994. Despite lack of resources, he became national champion and eventually a world champion through hard work and perseverance. Volleyball is a popular sport even in the rural areas. Golf and polo, on the other hand, are played largely by the urban elite. The most popular sport in the village is kabaddi, traditionally a team game which requires speed and strength. In this sport, a player has to cross into the opposition territory, touch an opponent within 20 seconds and make it back over the line to home ground within 25 seconds after contact. The touched player has to stop him from making it back in the time. Kabaddi is now a recognized sport among Asian games. Thus, sports are a significant part of Pakistani culture. Over recent years, there has been an increase in sports activities in Pakistan. Now, Pakistani sportsmen and women are participating in many national and international events. Several, बहुत ज़्यादा, immunity, किसी की भी प्रोटेक्शन करना के एक कहते हैं ये कूद मदाफत होती है जो कि आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। प्रिवेल, कॉमन होना, टूर्नामेंट, किसी भी मैच के खेल के जो एक सीरीज ऑफ मैचेस होते हैं उसको टूर्नामेंट कहते हैं। एडिक्वेट यानी कि काफ़ी, इनफ होना। फैसिलिटी, कोई भी फैसिलिटी होना, घर, पानी, आपका बिजली, ये फैसिलिटीज़ में आती हैं।
परसिवरेंस ये बेसिकली किसी भी की क्वालिटी होती है कि वो मुश्किलात के बावजूद जब हिम्मत नहीं हारता और कोशिश करता रहता है, उसको कहते हैं। रिमार्केबल, अनयूजुअल, हैरान कुन, देखने के काबिल, काबिल दीद। इवेंचुअली, फाइनली। अनएक्सपेक्टेड यानी कि जिसका आप उम्मीद ना कर रहे हो। ऑपोजिशन मीन मुखालिफ पार्टी। सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट होना। इंक्रीज यानी कि बढ़ना, तादाद में बढ़ना। इवेंट्स यानी कि कोई भी आप कह लें कि जो मौका होता है वो। अब देखते हैं हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन। खेल आमतौर पर स्कूल की तालीम और जिंदगी का एक अहम अंसर है। इसमें मुख्तलिफ अहम खसूसियात पैदा होती हैं, जैसे क़यादत, सब्र, टीम वर्क। खेल और जिस्मानी सरगर्मियाँ फिटनेस और आम बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करती हैं। मजीद बरा खेल मुनसिफाना खेल के जरिए किरदार की नशुमा और इखलाक के लिए बेहतरीन है। खेल शिरका को दूसरों के साथ बातचीत करने के मौका फराहम करते हैं और इस तरह सीखने का माहौल बना देते हैं, क्योंकि वो कवायद, टीम के साथियों और मुखालफिन का एहतराम करना सीखते हैं। जिंदगी नाकामी और कामयाबी से भरी पड़ी है, लेकिन ये हम पर मुनहसर है कि हम नताइज को कैसे समझते हैं। जब हम कोई खेल खेलते हैं, फुटबॉल कह लें या क्रिकेट, हम हार सकते हैं या जीत सकते हैं। स्पोर्ट्स में किसी की कामयाबी को कबूल करने का अमल है। इस किस्म की पॉलिसी हमारी राह में आने वाली नाकामियों और मायूसियों से निपटने में हमारी मदद करती है। नाकामी की सूरत में मुस्बत रवैया हमें अगली बार कामयाबी हासिल करने के लिए नए सिरे से कोशिश करने की तहरीक देता है। ऐसे हालात से हम शिकस्त को खुश उसलूबी से कबूल करना सीखते हैं। पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियों की एक वसी रेंज है। मकामी और बैनुल-अक़वामी दही इलाकों में रवायती खेल जैसे कुश्ती, घोड़ दौड़, कबड्डी मकबूल हैं। चैंपियंस के कारनामे गाँव के बॉर्डर्स के जरिए रिकॉर्ड किए जाते हैं और मुकामी लेजेंड का हिस्सा बन जाते हैं। शहरी इलाकों में क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश, पोलो, टेनिस और फुटबॉल जैसे खेल मकबूल हैं। सूबाई और कौमी सतह पर स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में टूर्नामेंट्स का इंतकाद किया जाता है। खेल कौमी तशख्खुस और फख्र की तशकील में कलीदी किरदार अदा करते हैं। फंड्स की कमी और मुनासिब सहूलियात की कमी के बावजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भरपूर सलाहियतों और अज़म के जरिए बैनुल-अक़वामी सतह पर भी शानदार फतूहात हासिल की। 90 की दिहाई के अवाइल में पाकिस्तान ने क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश और स्नूकर जैसे मतलू खेलों में आलमी चैंपियनशिप जीती। स्क्वाश में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी का आगाज बहुत कम था। स्नूकर और चिंग में पाकिस्तान हरीफों की कामयाबी भी इतनी ही हैरान कुन है। ये खेल उस वक्त मकबूल हुआ जब मोहम्मद यूसुफ ने 1994 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गैर मतवक्का फतह हासिल की। वसाइल की कमी के बावजूद मेहनत और लगन से कौमी चैंपियन और बिलाखिर आलमी चैंपियन बने। वॉलीबॉल एक मकबूल खेल है, यहाँ तक कि दही इलाकों में भी। दूसरी तरफ गोल्फ और पोलो बड़े पैमाने पर शहरी अशरफिया खेलते हैं। देहात में सबसे ज्यादा मकबूल खेल कबड्डी है। रिवायती तौर पर एक टीम गेम है जिसकी लिए रफ्तार और ताकत की जरूरत होती है। इस खेल में एक खिलाड़ी को मुखालिफ इलाके में दाखिल होना पड़ता है, 20 सेकंड के अंदर अंदर किसी मुखालिफ को छूना पड़ता है और राब्ते के बाद 25 सेकंड के अंदर उसे होम ग्राउंड पर वापस आना होता है। छूने वाले खिलाड़ी को उसे वक्त पर वापस आने से रोकना होगा। कबड्डी अब एशियाई खेलों में एक तस्लीम शुदा खेल है। इस तरह खेल पाकिस्तानी सकाफत का अहम हिस्सा है। हालिया बरसों में पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। अब पाकिस्तानी खिलाड़ी और खवातीन कई कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।